Hi everyone, welcome to channel Simple Concepts. I am Rashmita and I am back with another lecture और इस lecture में हम बात करेंगे British Conquest of Mysore के बारे में. मैंने अपनी previous videos में आपको समझाया था कि कैसे actually English powers ने अपना जो एक settlement है वो बंगाल में establish कर लिया था and how did they exerted their power in that region, in that particular region, and how did they played with the रूलर्स ऑफ बंगाल. ओके, कैसे उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल को हराया, उसके बाद अपना एक पपेट रूलर वहाँ पे बैठाया एंड हाउ डिड दे एक्चुअली टुक ऑल ऑफ द पावर, वेदर इट बी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और द मिलिट्री पावर इन देयर ओन हैंड्स. So after conquering the Bengal area, British actually moved to Mysore, okay, because Mysore was at a very strategic location. And if you want to like establish your power in a country, you will not actually declare a war against the whole country. What basic strategy that they adopted was कि उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक रीजन के ऊपर अपना पावर एस्टैब्लिश करना शुरू किया था. जैसे पहले बंगाल, फिर मैसूर, then the Maratha state. They were actually conquering first the all those power who were actually rising. ठीक है, उस टाइम पे जितनी पावर्स राइज हो रही थी वो उनको धीरे धीरे नीचे कर रहे थे कि कोई मेजर पावर उनके अगेंस्ट राइज ना हो जाए. So, how did they came to Mysore and what were all the wars like the Anglo-Mysore wars? We will talk about all of the four Anglo-Mysore wars, okay, in this particular lecture. So, let us begin with the lecture. So, before coming to the main thing, I want to discuss that there are 3 mega batches for your complete preparation which are going to start from 15th of June on Unacademy. Okay, you can join any of these 3 courses. First is Mission UPSC CSC 2021, second is Lakshya UPSC CSC 2021 and third is Expedition UPSC CSC 2021. सो आपको पहले वाले कोर्स में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हर चीज़ बताई जाएगी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. सेकेंड वाले में आपको हिंदी में लेक्चर्स दिए जाएंगे एंड इन द थर्ड वन इंग्लिश लैंग्वेज विल बी यूज्ड. सो व्हाट ऑल यू विल बी गेटिंग इन दीज कोर्सेज is full syllabus coverage for your UPSC and the prelims and mains test series with analysis, dedicated doubt clearing sessions and for most important interview preparation tips. So you can join any of the 3 courses जो आपको comfortable लगे. Also you can use our code SIMPLEYT to get an extra 10% discount on your total amount जो आप इन courses के लिए pay करेंगे. Okay, remember this code SIMPLEYT. Also, there is a all India free mock test for UPSC Prelims 2020 which is going to held on 21st June. You can also enroll for this for free. Okay, you can sit for this exam and get to know okay, how much you have prepared, how much well do you actually come out in this paper and how much more do you have to study. So you can enroll for this exam and give this exam on 21st June. So with this, let us get start with the lesson. सो यस, सो बिफोर कमिंग टू द मेन इशू कि इंग्लिश और मैसूर के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट्स हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड द मैसूर डायनेस्टी इवॉल्व. ओके, बिकॉज इनिशियली मैसूर डायनेस्टी जो थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. देयर वाज लाइक द बिग एम्पायर्स लाइक द विजयनगर एम्पायर एंड एवरीथिंग. ओके, सो हाउ डिड द मैसूर डायनेस्टी इमर्ज, हु वर द रूलर्स एंड हाउ डिड इट came to the hands of Hyder Ali and Tipu Sultan? We will discuss about it first in our lecture. So yes, so after the Battle of Talikota, Vijayanagar Empire got divided into several small kingdoms, one of which was Mysore. So what happened was कि Battle of Talikota हुआ था in which Vijayanagar Empire participated and the opposition party was this several Deccan rulers. So basically क्या था उस टाइम जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे, he was actually conspiring against those Deccan rulers. Okay, what he actually tried was कि उन्होंने वो सब जो डेक्कन रूलर्स थे, ओके, मुस्लिम डेक्कन रूलर्स जो थे, उनके खिलाफ एक कहते हैं ना फूट डालनी, वो स्टार्ट कर दी थी कि वो लोग आपस में झगड़ के जो उनका पावर है वो कम हो जाए. बट जो वो डेक्कन रूलर्स हैं उनको इस चीज़ का हिंट मिल गया था कि विजयनगर के एम्पायर के जो रूलर हैं वो ये चीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं. सो व्हाट डिड दे डू डिड वाज कि
उन्होंने खुद एक अलायंस बना लिया, ठीक है। जितने भी डेक्कन रूलर्स थे सबने मिलके विजयनगर एम्पायर के रूलर के अगेंस्ट एक अलायंस बनाया एंड द बैटल ऑफ तालिकोटा वाज fought. So after the battle of Talikota, जो विजयनगर एम्पायर था, it got divided into several small kingdoms. Okay, उन जो छोटे छोटे किंगडम्स में थे उनमें से एक था मैसूर. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन मैसूर इवॉल्व, इट इवॉल्व अंडर द रूलर्स ऑफ वोडेयार. वोडेयार्स वर्स के दे वर द हिंदू रूलर्स बेसिकली. ओके, so initially Chikka Krishnaraj Wodeyar II ruled over Mysore from 1734 to 1766. तो इन्होंने इतने टाइम के लिए रूल किया, बट एक्चुअली जो मैसूर है व्हेन इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, इट एक्चुअली बिकेम द स्ट्रॉन्ग पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. जितना भी डेवलपमेंट, जितना भी लाइक द स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड एवरीथिंग जो था मैसूर का, वो सब डेवलप हुआ था हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम में. So basically, why were English wanted to conquer Mysore? So क्या था, first of all जो टीपू सुल्तान थे और जो हैदर अली थे, उनके फ्रेंच फोर्सेस के साथ, ठीक है, जो फ्रेंच थे उनके साथ रिलेशनशिप्स, उनके साथ फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होती जा रही थी, उनके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंग्लिश वर फीलिंग इनसिक्योर्ड ऑफ देयर पावर. उनको ये डर था कि कहीं फ्रेंच इनके साथ मिलके उनके अगेंस्ट एक रिवोल्ट ना खड़ा कर दें. ओके, द सेकेंड रीजन वाई इंग्लिश वॉन्टेड टू एक्चुअली कॉन्कर मैसूर, बिकॉज एज द मैसूर वॉज ग्रोइंग डे बाई डे, तो उनको ये थ्रेट हो गया था कि अगर मैसूर ग्रो करेगा सो इट विल एक्चुअली take over the state of Madras, because Mysore was very close to Madras. Okay, so if you will see in the map, the present Andhra state, okay, it was basically उसको मैसूर कहा जाता था, लाइक पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड द पार्ट ऑफ इन द मिडल. ओके, दैट वाज एक्चुअली द मैसूर स्टेट एंड इट एक्चुअली like you know existed near the Madras state. So basically जो English थे उनको ये डर था कि अगर टीपू सुल्तान की पावर बढ़ी so he will actually conquer the Madras state, and this particular area was very rich, okay, in everything, as it was on the very strategic location, because जो यूरोप से जो रूट था that was along this area Madras, as I have discussed in my previous videos के जितने भी यूरोपियन लीडर्स आए थे या पावर्स आए थे वो इसी रूट के थ्रू आए थे. सो दे डिडंट वांटेड कि अगर मद्रास चला जाता तो बेसिकली इंग्लिश का जो ट्रेड है यूरोप से वो कम हो जाता. ओके, सो दे डिडंट वांटेड दैट, सो दैट्स व्हाई दे एक्चुअली डिसाइडेड कि उनको जो टीपू सुल्तान और हैदर अली है उनका पावर कम करना पड़ेगा एंड दे हैव टू एक्चुअली conquer Mysore. So how did actually power came from Chikka Krishna Wodeyar to actual Hyder Ali? We will discuss about it. So now we will discuss about the rise of Hyder Ali. So क्या हुआ था, बेसिकली जो हैदर अली थे ही वॉज बोर्न इन एन ऑब्सक्योर फैमिली, ठीक है, बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड हिज करियर एज अ हॉर्समैन इन मैसूर आर्मी. सो देयर वर एक्चुअली two leaders, okay, two ministers, नंदराज एंड देवराज. ओके, सो क्या था उस टाइम पे ये जो रूलर थे वोडेयार, जो कृष्णराज वोडेयार थे ये रूल करते थे, बट ही वॉज मियरली अ पपेट रूलर. ओके, सो बेसिकली जो पूरा काम था आर्मी का वो यही दोनों मिनिस्टर्स देखते थे, नंदराज एंड देवराज. सो हैदर अली वॉज ऑल्दो अनएजुकेटेड बट ही एक्चुअली हैड अ वेरी like you know keen intellect, and he was a man of energy, like he got everything which a military men do. Okay, so उस टाइम क्या हो रहा था, बेसिकली जो मैसूर स्टेट जो इमर्ज हुआ था उस पे मराठास और निज़ाम्स दोनों के दोनों अटैक्स कर रहे थे बार बार, एंड दे एक्चुअली आस्क्ड फॉर अ लॉट ऑफ मनी कि आप हमें पैसा दो तब हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस हाई यू नो फाइनेंशियल डिमांड बाय दीज एग्रेसर्स, मैसूर स्टेट वॉज एक्चुअली फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली गोइंग डाउन. बिकॉज अगर आप दूसरों को इतना पैसा दे दोगे जस्ट फॉर के आप हमारे ऊपर हमला मत करो तो आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाओगे. सो बेसिकली फाइनेंशियली उस टाइम मैसूर की स्टेट उतनी अच्छी नहीं थी और पॉलिटिकली भी उतनी अच्छी नहीं थी. सो उस टाइम एक नीड थी, देयर वाज अ नीड ऑफ अ लीडर विद हाई डिग्री ऑफ मिलिट्री पावर, विच एक्चुअली हैदर अली fulfilled. Okay,
So basically after that he became the de facto ruler of Mysore. De facto ruler means एक्चुअल रूलर जो थे वो कृष्ण वोडेयार ही थे, ओके। बट जो सारी पावर थी, जितने भी मिलिट्री पावर और सब थी, वो एक्चुअली डी फैक्टो रूलर के हाथ में आ गई थी, मतलब हैदर अली के हाथ में आ गई थी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्रेसिडेंट होता है, बेसिकली ही इज द लीडर ऑफ इंडिया, बट ऑल ऑफ द पावर इज इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो काम करते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर करते हैं, एंड देयर इज जस्ट अ अथॉरिटी of the president over it. So similarly, this Wadiyar king became the puppet ruler, and all of the power came in the hands of Hyder Ali. So with his superior military skills, he was able to tackle Marathas. सो वॉट ही एक्चुअली रियलाइज्ड वॉज कि जो मराठा और निज़ाम दोनों अटैक कर रहे हैं, सो द मराठाज वर वेरी मोबाइल, लाइक दे कुड मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर वेरी स्विफ्टली, ओके। सो वॉट ही एक्चुअली थॉट के हम कैसे मराठा को कॉन्कर कर सकते हैं। सो वॉट ही लाइक ही केम अप विथ के एक लाइक डिफाइंड कैवलरी होनी चाहिए कि पहले के लोग क्या होते थे, बस चल रहे हैं और ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बट ही एक्चुअली थॉट कि कैवलरी अगर होगी, एक ऑर्गेनाइज कैवलरी होगी, तो वो मराठा के अगेंस्ट जो है वो उसको कॉन्कर कर पाएगी। ऑल्सो जो निज़ाम की आर्मी थी दैट वॉज फ्रेंच ट्रेंड, ओके। जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने निज़ाम की आर्मी को ट्रेन किया था कुछ पार्ट को। सो ही थॉट कि जो निज़ाम की आर्मी है उसको कैसे हराया जा सकता है, तो उसको हराया जा सकता था गुड आर्टिलरी से, बिकॉज एज यू ऑल नो इंडिया was a little backward on all of these terms. It was one of the reason कि क्यों ब्रिटिश पावर्स जो है वो इंडिया के ऊपर अपना पावर इस्टेब्लिश कर पाए, बिकॉज इंडिया ने उतना ग्रो करने की कोशिश ही नहीं की। लाइक अगर वो तलवार से लड़ रहे हैं या चाकू से लड़ रहे हैं तो वो उन्हीं से ही लड़ते रहे, जबकि जो इंग्लिश थे उनके पास कैनन्स थी, गुड आर्टिलरी था, बट इंडियंस के पास वो नहीं था। सो ही एक्चुअली थॉट कि जो भी इनके पास चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल निज़ाम के पास अगर तोप है, तो एक्चुअली हैदर अली थॉट कि उस चीज़ को मैं सिर्फ उसी चीज़ से टैकल कर सकता हूँ जो वहीं से आई हो। लाइक इफ निज़ाम हैज़ borrowed some cannons from French, okay, it has came from Europe, तो हैदर अली ने भी बेसिकली यूरोप से कुछ कैनन्स मंगवाई, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से इन सब टैक्टिक्स से मराठास को और निज़ाम को कंट्रोल कर लिया था मैसूर के ऊपर अटैक करने से। And he actually also took the help of French people to train his own army. This was a very clever move, okay, because he actually realized कि without any मतलब अगर हम अपनी मिलिट्री को पर्टिकुलरली एक वॉर के हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे, जैसे कि जो दूसरी पार्टी है वो कर रही है, तो हम हार ही जाएंगे, वॉर से पहले ही हार जाएंगे। बिकॉज हमेशा एक वॉर में एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए हर एक छोटी छोटी चीज़ का, एंड देयर शुड बी अ पर्टिकुलर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, ओके। सो व्हाट ही डिड वाज ही एक्चुअली came in a like treaty or like came in a friendship with French people, and he actually asked French people to train his army, and in like return he gave them the area to establish their factory and everything. Because of this actually English got a little annoyed, and he had like such tactical powers, like diplomatic powers, कि उन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ को जीत भी लिया था, लाइक बालापुर, सेरा, बिडनौर, इन सब एरियाज़ को उन्होंने जीतना शुरू कर दिया था with his like the diplomatic power. Also he later in years he actually attacked the Maratha state too. So this was the rise of Hyder Ali, कि how did he proceeded and how did he actually became the ruler of Mysore Empire, and उन्होंने कैसे मैसूर का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया था। So now we will discuss about first Anglo-Mysore war, के क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इंग्लिश और हैदर अली के बीच में, कि एक वॉर स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। सो बेसिकली उस टाइम क्या हुआ था, इंग्लिश कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद निज़ाम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हैदर अली इन ल्यू ऑफ नॉर्दर्न सिरकास टू बी हैंडेड ओवर टू इंग्लिश। सो बेसिकली व्हेन मैसूर राइज्ड, ओके, तो उन्होंने क्या किया, पहले निज़ाम मैसूर के ऊपर अटैक करते थे, बट इन लेटर ईयर्स जब फ्रेंच की हेल्प से हैदर अली ने अपनी मिलिट्री को अच्छे से ट्रेन कर लिया था, तो उन्होंने निज़ाम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, हैदराबाद पे अटैक करना शुरू कर दिया था।
तो निज़ाम ने इंग्लिश की हेल्प मांगी एंड इंग्लिश एक्चुअली आस्क्ड कि हम आपकी हेल्प करेंगे बट in return you have to give us the area of Nadan Sirkas. Okay, so it is on the east coast, okay, but not the upper east coast, in the lower east coast if you will see. Okay, over the state of like Tamil Nadu, the area near this Odisha if you will guess. तो उसको हम नदन सिरकास कंसिडर करते हैं. तो बेसिकली इंग्लिश ने बोला कि आप हमें नदन सिरकास का जो एरिया है वो हैंड ओवर कर दो एंड वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हैदर अली. So Hyder Ali also had disputes with Nawab of Arcot and Marathas already. तो इस चीज़ का इंग्लिश ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, निज़ाम, मराठास और जो इंग्लिश फोर्सेस थे उन तीनों ने एक अलाय बना लिया, मतलब मिल के मैसूर के ऊपर अटैक करने का डिसाइडेड किया. बट एट दिस टाइम हैदर अली जो है उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मूव खेला और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मराठास थे उनको पैसा दिया कि आई विल गिव यू दिस मच ऑफ मनी और उनको अपनी तरफ टर्न कर लिया. एंड ही एक्चुअली प्रॉमिस्ड निज़ाम कि मैं जितनी भी टेरिटरीज जीतूंगा आई विल शेयर इट विद यू. तो उन्होंने ये ऑफर देके निज़ाम को भी अपनी साइड कर लिया था. तो बेसिकली क्या हुआ, जो अलायंस था इंग्लिश, निज़ाम और मराठा का हैदर अली के अगेंस्ट वो टूट गया. ओके, so this was the course of war. He made an alliance with Nizam and Maratha by playing tactics and turned them to his side, as I have already discussed. But the war continued for 1 year without any conclusion. Then Hyder Ali suddenly appeared on the gates of Madras, which forced English to surrender and sign a treaty named Treaty of Madras. So basically क्या हुआ कि जब उन्होंने मराठास को और निज़ाम को अपनी साइड कर लिया तो वॉर तो स्टार्ट हो गया, बट वॉर चलता रहा. देयर वाज नो कंक्लूजन ऑफ द वॉर. सो बेसिकली वन डे व्हाट ही डिसाइडेड वाज कि उन्होंने निज़ाम और मराठास वर एक्चुअली फाइटिंग. तो हैदर अली ने क्या किया, वो सडनली मद्रास की साइड से इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया. एंड सिंस ऑल ऑफ द बैटल वाज गोइंग इन नियर द स्टेट ऑफ लाइक ऊपर थोड़ा सा, ओके, नियर द मैसूर. तो मद्रास की साइड से जो था इंग्लिश के फोर्सेस कम हो गए थे. तो अचानक से हैदर अली ने जब मद्रास के गेट पे अपीयर किया, सो देयर वाज नो चॉइस फॉर द इंग्लिश. ओके, दे एक्चुअली हैड टू सरेंडर एंड साइंड अ ट्रीटी नेम्ड ट्रीटी ऑफ मद्रास. सो इस वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था. सो नाउ लेट अस सी व्हाट वर द प्रोविजंस अंडर दिस ट्रीटी. सो इट प्रोवाइडेड द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट. तो इस ट्रीटी के अंडर ये डिसाइड हुआ कि जब जैसे हैदर अली जब मद्रास पहुँचे तो उन्होंने इंग्लिश जो फैक्ट्री थी वहाँ के जो लोगों को है वो प्रिजनर बना लिया था. तो एक्चुअली इट वाज डिसाइडेड कि हैदर अली विल रिलीज दोज प्रिजनर्स एंड देयर विल बी अ म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट कि दोनों लोग विल कम टू पीस. ओके, ऑल्सो इंग्लिश प्रॉमिस टू हेल्प हैदर अली ड्यूरिंग हिज वॉर. तो इंग्लिश ने हैदर अली को प्रॉमिस किया कि आने वाली जितनी भी वॉर्स हैं हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे. So this is how the this war, the first Anglo-Mysore war, came to an end. So now we will discuss about second Anglo-Mysore war. कि ये कब start हुआ था? ये start हुआ था 1780 में. And what was the background? Breach of Treaty of Madras by English and increasing friendship between Hyder Ali and French. सो उस टाइम पे क्या हुआ था, बेसिकली हैदर अली के बाद जो मराठास थे उन्होंने अटैक किया था. ओके, और इंग्लिश जो है वो रेस्क्यू के लिए नहीं आए थे, जबकि ट्रीटी ऑफ मद्रास के अंडर ये डिसाइड हुआ था कि अगर हैदर अली के ऊपर कोई भी अटैक होता है या हैदर अली किसी भी वॉर में इन्वॉल्व होता है तो इंग्लिश हैदर अली का सपोर्ट करेंगे और उनको मतलब बचाएंगे. ठीक है, बट जब उनका मराठास के साथ एक क्लैश हुआ, देन इंग्लिश एक्चुअली फेल्ड टू रेस्क्यू हैदर अली. So Hyder Ali took it as a breach of Treaty of Madras. Also, English were actually, feeling uncomfortable with the increasing friendship of Hyder Ali and French. क्या था कि एक्चुअली जो हैदर अली थे ही रियलाइज कि इंग्लिश से ज़्यादा जो फ्रेंच फोर्सेस हैं वो उनके नीड्स को पूरा कर सकते हैं. लाइक द मिलिट्री स्किल वाज लाइक मच बेटर, और जो फ्रेंच थे वो हैदर अली की आर्मी को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं. सो व्हाट ही डिड वाज ही मेड अ पैक्ट विद द फ्रेंच
कि मैसूर के थ्रू कुछ कुछ जो है जो वॉर मटेरियल है वो फ्रेंच से हैदर अली के पास आ रहा था एंड इंग्लिश टुक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस बिकॉज एट दैट टाइम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अमेरिका गोइंग ऑन ओके और जो फ्रेंच थे वो इंग्लिश की जो ऑपोजिशन में जो पार्टी थी उनका साथ दे रहे थे तो इंग्लिश ऑल्सो टुक इट इन अ वेरी बैड वे कि दिस शुड नॉट हैपन अगर एक ट्रीटी हुई है दोनों के बीच में सो दे शुड अबाइड बाय इट सो बेसिकली दिस वॉज द बैकग्राउंड जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोबारा से क्लैशेस हुए एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ ओके so now we will discuss about the course of war so Hyder Ali forged anti-English alliance with Marathas and Nizam उन्होंने एक alliance बनाया मराठास और निज़ाम से मिलके Sir Ayarkut was able to detach both Marathas and Nizam from Hyder Ali's side but still Hyder Ali faced English boldly to suffer a defeat at Porto Novo so उस टाइम जो सर आयरकूट थे he was in this army he was actually fighting from the side of English and he with his like diplomatic rules and policies उन्होंने मराठास को और निज़ाम्स को दोनों को हैदर अली की साइड से हटा के अपनी साइड कर लिया था and still like Hyder Ali actually faced the English forces boldly okay he was like okay ठीक है I have trained my military and everything so I will face the English forces but he actually suffered a defeat at Porto Novo in 1781 okay however he regrouped his forces and defeated the English but during war he died of cancer so he actually again after some time he actually regrouped his forces and defeated the English but when the war was going on he actually died of cancer and this war was like further taken by his son टीपू सुल्तान तो इस जब इनकी डेथ हो गई थी हैदर अली की उसके बाद ये वॉर कंटिन्यू किया उनके बेटे टीपू सुल्तान ने सो लास्ट में क्या हुआ दिस वॉर वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कोई कंक्लूजन नहीं निकला ओके So a treaty of Mangalore was signed. The war went on for 1 year between Tipu Sultan and English forces without any conclusion. Hence the treaty of Mangalore was signed. तो इस treaty में ये हुआ कि both the parties came to a peace that they will like you know not fight and they will come to peace and which the territory they have took वो अपनी अपनी टेरिटरीज उनको वापस दे देंगे जिसकी जो टेरिटरी थी वो उसी को रखेगा सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर दैट नोबडी एक्चुअली वॉन बोथ द पार्टीज केम टू द पीस नाउ कमिंग टू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के जब सेकेंड के बाद वो लोग पीस पे आ गए थे देन व्हाई डिड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हैपेंड सो द बैकग्राउंड फॉर दिस वॉर इज कि जो ट्रावनकोर रूलर्स थे उन्होंने दो एरियाज जलकोटल एंड कैननोर को खरीद लिया था किससे डच पावर से जो डचेस थे उनसे ये दोनों एरिया खरीद लिए थे और ये जो दोनों एरिया थे ये स्टेट ऑफ कोचिन में लाई करते थे सो बेसिकली टीपू सुल्तान जो था उनका एक लाइक यू नो एक सॉवरेन राइट था कोचिन के ऊपर लाइक ही एक्चुअली कंसीडर्ड कोचिन एज हिज ओन टेरिटरी सो जब ट्रावनकोर रूलर्स ने ये दोनों एरियाज टीपू सुल्तान की बजाय डच रूलर्स से खरीदे सो ही एक्चुअली like considered this act of Travancore rulers as the act of violation of his sovereign rights कि आपने मेरे स्टेट में से कैसे जमीन खरीद ली without my permission so it was a violation of his sovereign rights over the area of Cochin okay so basically Tipu Sultan declared a war against ट्रावनकोर रूलर्स तो इस वॉर में क्या हुआ जो इंग्लिश थे उन्होंने ट्रावनकोर की साइड ली ओके एंड अटैक टीपू सो इनिशियली इन 1791 टीपू डिफीटेड इंग्लिश अंडर जनरल मेडोस ओके जनरल मेडोस के अंडर जब इंग्लिश पावर लड़ाई लड़ रही थी टीपू के साथ तब टीपू ने इंग्लिश को डिफीट कर दिया बट इन 1721 कॉर्नवालिस ने लीडरशिप ली उस वॉर की एंड ही एक्चुअली कैप्चर्ड वेलोर एंड बैंगलोर एरिया एंड एट लास्ट उन्होंने मराठास और निज़ाम का सपोर्ट लेके सेंगरीपट्टनम को वन कर लिया था एंड ही एक्चुअली डिफीटेड टीपू सुल्तान सो आफ्टर दिस वॉर अ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वाज साइंड अंडर दिस ट्रीटी नियरली हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी was taken by victors जो मैसूर की जो टेरिटरी थी ऑलमोस्ट हाफ वो जो जीते थे पार्टी उन्होंने ले ली थी लाइक द इंग्लिश मराठा एंड द निज़ाम सो देयर इज अ लिस्ट दैट आई हैव मेड कि इंग्लिश को कौन सी टेरिटरी मिली थी
बारामहल, दिंदीगुल एंड मालाबार। मराठास को मिला था रीजन सराउंडिंग द तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो जो तुंगभद्रा जो रिवर थी वो और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास के जितना भी एरिया था वो सब मराठास ने ले लिया था। और निजाम एक्चुअली एक्वायर्ड द एरिया फ्रॉम द कृष्णा बियॉन्ड द पेनार रिवर, ओके। तो जो पेनार रिवर और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया था वो सारा निजाम के अंडर आ गया था आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ सेगरीपट्टनम वॉज साइन। यू मस्ट रिमेंबर कि कौन सी वॉर के अंडर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। सो फर्स्ट पहले के अंडर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, then in the second one basically both the parties came to a peace, and then in the third one treaty of Seringamapatnam was signed. So now we will come to the fourth Anglo-Mysore war. So the background of this was after the death of Hindu ruler of Wadiyar dynasty, Tipu refused to place Wadiyar's minor son on the throne and declared himself Sultan. Okay, so what happened was कि initially जब third एंग्लो-मैसूर वॉर ओवर हुआ था उसके बाद टीपू वाज एक्चुअली इनकरिंग जो उनको लॉसेस हुए थे उनसे उभरने की कोशिश कर रहे थे, एंड ही वाज एक्चुअली fulfilling all the conditions of the treaty of Seringamapatnam, okay, but after the death of हिंदू रूलर ऑफ वोडियार, ठीक है, जब टीपू को हटा दिया गया था और जो हिंदू रूलर थे वोडियार डायनेस्टी के लाइक द पपेट रूलर, व्हेन ही एक्चुअली डाइड, तो टीपू ने कहा कि जो वोडियार के माइनर सन है आई विल नॉट लेट हिम सिट ऑन द थ्रोन, एंड टीपू एक्चुअली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। ही ऑल्सो डिसाइडेड कि वो जो उनकी हार हुई थी लास्ट वॉर में उसका रिवेंज लेंगे, एंड ही एक्चुअली वॉयलेटेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। Also, Lord Wellesley became the governor of India and he forced Tipu to submission through the system of subsidiary alliance. So basically उस टाइम जो लॉर्ड वेल्सले थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, एंड एज यू ऑल नो जो सब्सिडरी अलायंस था इट वाज द मेन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेल्सली। तो वो क्या कर रहे थे, वो हर स्टेट को इस बेसिकली पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए बोलते थे। ही वाज एक्चुअली फोर्सिंग एवरीवन टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी, ओके। ही ऑल्सो फोर्स्ड टीपू to submit under this policy. So these were all the reasons why the fourth Anglo-Mysore war happened. So what actually happened during the war was Marathas and Nizam again helped English in the war. Tipu was defeated by General Stuart. Okay, इस war में भी मराठा और निज़ाम ने इंग्लिश का साइड लिया और टीपू was finally defeated by General Stuart. So General Stuart was actually leading the fight from the English side. Tipu laid down his life fighting. He actually died while he was fighting. His treasury was confiscated and a boy from Hindu royal family of Mysore was chosen as the Maharaja and subsidiary alliance was imposed. So after the death of Tipu Sultan, जितना भी treasury था मैसूर का उसको इंग्लिश ने अपने अंडर ले लिया था, एंड लाइक हिंदू बॉय, ओके, सो देयर वाज अ हिंदू रॉयल फैमिली, उसके एक लड़के को बेसिकली महाराजा ऑफ मैसूर डिक्लेयर कर दिया था, एंड ही एक्चुअली फोर्स्ड हिम टू सबमिट अंडर द सब्सिडरी अलायंस। सो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया था। वी विल डिस्कस व्हाट सब्सिडरी अलायंस इन डिटेल इन अपकमिंग लेक्चर्स, ओके। So this all happened. So if you have noticed, तो जो हमारे खुद के लोग थे like the Marathas and Nizam, they actually sided English, thinking कि उनको मैसूर स्टेट मिल जाएगा, ठीक है, खुद के लालच में उन्होंने ये किया। बट इन द लेटर स्टेजेस जो इंग्लिश थे उन्होंने इन्हीं के जो स्टेट थे इन्हीं के रीजन को जीत लिया था वापस, ठीक है। तो बेसिकली दे एंड अप विथ नथिंग, ओके। सो all of the tactics which English played had already been played by every other ruler of like out of India. जो भी जैसे डच है या फ्रेंच है उन्होंने भी ये टैक्टिक्स खेलने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली इंग्लिश सक्सीडेड बिकॉज दे हैड अ लाइक अ लॉट ऑफ टैक्टिकल लीडर्स। उनके जो लीडर्स थे वो इतने डिप्लोमेटिक थे कि वो बहुत आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते थे, ओके। सो दिस लाइक यू नो जो खुद के राजा थे उनके आपस में जो अनबन थे, इट वॉज द very foremost reason that India fell into the hands of British. So by this we came to the end of this lecture. I have made this note so that you can actually remember कि कौन सी war में क्या हुआ था.
So in first Anglo-Mysore wars, as I've already told you, हैदर अली और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में हुई थी. हैदर अली इसमें जीत गए थे when he actually appeared on the gates of Madras. Okay, remember? So इसके अंडर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में इंग्लिश फोर्सेस से लीड कर रहे थे सर आयरकूट और हैदर अली, बट हैदर अली डाइड इन बिटवीन बिकॉज ऑफ कैंसर. And then Tipu Sultan continued, but because there was no conclusion to the war actually happened for like 1 year. So both sides opted for peace and the Treaty of Mangalore was signed. इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में वॉर हुई थी. सो इसके जो मेन लीडर आपको याद रखने हैं इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. सो इंग्लिश फोर्सेस एक्चुअली वन with the help of Nizams and Marathas, and the Treaty of Seringapatam was signed. इस ट्रीटी के अंडर ये ट्रीटी आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है. क्यों? बिकॉज इसके बाद जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेरिटरी था मैसूर का वो इंग्लिश, निज़ाम और मराठास के पास चला गया था. एंड द फोर्थ एंग्लो मैसूर war was like between Tipu Sultan and English forces. In this also English won. The main leader which you need to actually remember for this war is Arthur Wellesley. Okay, ये Lord Wellesley के brother थे basically. So he participated in this war, and in this English won, and a Hindu boy was made the Maharaja of Mysore. He was basically the puppet ruler. जो पावर था वो इंग्लिश के हाथ में आ चुका था. He was merely a puppet ruler कि जो इंग्लिश के कहने पे चलता. And actually he submitted Mysore under the subsidiary alliance. So the subsidiary alliance was forced on Mysore after fourth Anglo-Mysore war. So by this we came to an end of this lecture. In next lecture we will talk about how did English conquer the state of Maratha after Mysore. Okay, so till then please take care and bye bye.